Yes, Sonny sir, am I audible? Yes, Chintan sir, audible. Okay, thank you. So please tell me when I have to start. Yes, sir. We are about to start our session. Okay, sir. Okay. ठीक है. Uh, okay. We can see almost 30 plus participants have been joined the session, and still many more are joining. So, very first, before starting, I would like to extremely apologize for the delay of this particular session, as we had our internal communication that this expert session will be considered as a part of our webinar series of Shantilas Engineering College, and as per the instruction of our principal sir, it is going to be get recorded and it will be made available for the students as and when they need on the YouTube as well on our institute website. So, uh, without wasting much time, I would like to uh, invite our today's speaker, Professor Chintan Gajjar sir, who is the assistant professor in the Government Engineering College, Bhavnagar, and sir is going to take a session on this parking studies today. And yes, we have already wasted so much of time. So without wasting much time, let us focus on our today's uh, core objective of this particular session. So I will welcome B.A. Gajjar sir, and the stage is yours now. Okay, thank you very much, sir, for inviting me to deliver the expert session. Let me share my screen. Yeah. So is the screen visible? Yes, sir. Screen is visible, sir. Okay, okay. Thank you very much, sir. So, good evening, students, and welcome to the lecture of Transportation Engineering subject, in which I would like to take module number 2 topic, that is parking study. Okay. So, before we start, let me give you my brief introduction. My name is Professor Chintan Gajjar, and I am having 5 years of experience on the field and 4 years in teaching. Presently, I am serving Government Engineering College, Bhavnagar, as an assistant professor in civil engineering department. Okay. So today's content have been divided in following topics. The very first, we will start from the practical facts about the parking. See, as and when you will be graduate એ તો and ચાલુ will થયું be છે. serving the field and society, at that time you will find somewhat different picture than the bookish knowledge. Okay, so it is very important for all of us to correlate the bookish knowledge, the concept and fundamentals which is presented in the books, and we have to correlate that knowledge and information with the field.
Okay, so before we start the topic, we will first of all discuss about the practical facts about the parking. Next, what will be the objectives of parking studies? Why you should be needing to go through this topic only as a part of curriculum or as a part of syllabus? No, it is very important for us to study the parking surveys and how we can easily design and divide the sections and facilitate the road users about the parking. Okay. Further, we will discuss the basic definitions. Later on, the parking surveys and its methods, how we can identify the space requirement, how it is the dominant factor as and when we are seeing any particular area of Bhavnagar city or your city or any other city in the India, that how effectively we can visualize that this is the place or over which we can design the suitable parking facility. Okay. Later on, we will briefly discuss about the types of the parking, that is the on-street parking as well as the off-street parking. And finally, we will end up our today's session with the problem, solution and investigation required. Okay. So, as I feel, the basic problem of parking started with the invention of wheel. Okay. So, as and when the wheels invented, the basics or the DNA of the parking problems were invented. Okay, but rather than these jokes apart, let us see some facts. Only you have to concentrate on the underlined portion which is presented in bold and dark fonts. See, vehicles don't keep moving all the way towards the journey. Okay, if somebody is having journey from Ahmedabad to Delhi, so the person is not going to continuously ride on the road. Okay, so the vehicle as well as the person will require somewhat short duration or longer duration for the rest. Okay, next, as and when the traffic volume will be more, the parking problems will be more. Okay, that means what I can simply say that the parking problems are in direct proportion to the traffic volume. Okay. Next, the parking space is one of the major problems where say for example भावनगर में क्या है यार, क्या पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, but if we talk about the metropolitan cities, mega cities, important cities and town, or even the area of particular area of important cities, then we will find this as one of the major problems about which the city and the management of city, say for example municipal corporation or area development authority is fighting. Okay, so the parking problem along with the space required for the parking is one of the major problems. Next, high parking demand. As and when, if we ask about the democracy, we will be told that it is for the people, by the people, and of the people. Okay, so in our management system, we have to either demand the parking facility, either we will be given the parking facility as a part of the development plan, or the authority will find the necessity of providing the parking facility, then and then we will be given. Okay, these three ways are there for getting the parking facilities. And last thing, that is the families with the car. See, before 20 years or 30 years, the cars were limited. Okay, but nowadays the car is not for only used for the purpose of luxury. It is also used for serving the basic needs. Okay, like day-to-day traveling, long journey traveling. So this is the thing which everybody wants as a part of the family. बराबर, हर एक फैमिली में हर एक को तो कार नहीं चाहिए, लेकिन एक हर एक फैमिली को एक कार चाहिए. Okay, so these are the facts, but what about the bitter facts? जो कड़वा सच होता है वो ये है. So if we look back in the previous decade, just from 2011 to 2020, we can see I have narrated some of the facts here. You can read it out. On any given working day, approximately 40% of the roads in urban India are taken up for parking the cars. 40% of the roads in India, urban India I am saying. Okay, so it is the article presented in Indian Express in 2014.
Later on in next immediate year, there was a roundtable conference by Times of India as a part of the business and research development in transportation section. So what was their remark about Delhi? Delhi has become the worst place to park in and will not get better. In 2015, there was a statement. Okay. Next, in 2019, a recent global study of parking in big cities across the world suggests that the average city driver spends an average of 18 to 20 minutes searching for a parking space. So, if we talk about the world, because we always think about the design solutions in respect of the world. Okay, as the world has become a global family, so we have to take care about the research and the information which has been presented at the world level too. Okay, so the 18 and 20 minutes are taken by the average driver for searching the parking space. And the last, which has been the article of the survey presented in 2020, that is in India is the fourth largest automobile market in the world, surpassing Germany in terms of sales. That means what? कि जर्मनी को हमने ओवरटेक कर लिया है. ओके, जर्मनी को ओवरटेक कर लिया है एंड वी हैव बीन द यूजर्स. इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द प्राइमेस्ट यूजर्स ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड ऑटोमोबाइल इज नॉट एनी डिफरेंस देन अदर. ओके, so ultimately what are the different objectives of parking study? So why do we need the parking study? બરાબર, આપણે ભણવું શું કામ જોઈએ પાર્કિંગ સ્ટડી? ખાલી સિલેબસમાં છે એટલે નો. To obtain the information regarding demand for the parking spaces. Demand, we have to ask ourselves that whether technically, not as a I'm not talking about the social sense, but I'm talking about the technical sense. So the parking space and the demand have become very crucial factor as and when the roads are there, as and when the urbanization is there, and as and when the industrialization is also there. Okay, so the demand is there. Next, second objective, that is to improve and regulate the existing parking facilities. So whatsoever the existing parking facilities are there, we need to improve it within 5 years or 10 years or so, right? We cannot continue we cannot continue with the existing parking facilities after 5 years. Okay, because of the rise in numbers of vehicles, rise in the or shortage of the land of land for the or land or open space for the parking. We are not getting the parking space free of cost in busiest area. Just if I talk about Bhavnagar, the Talao is the place. Before 5 years, the Talao was the place which was lacking, which was over flooding with the vehicles. Okay, and people were not able to find the parking facilities. Third objective, to coordinate and correlate the present demand and future requirement. Okay, we have to be careful about the future development also. That is the part of the sustainable development, right? बहुत कुछ कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, बट whatsoever the facilities we are enjoying today, we have to keep it in improving condition for the future generation also. That is the basic purpose of the sustainable development. So the future requirement, we should also be take care we should also take care of the same. Okay, and the fourth objective, that is to decide about the smart and pay parking, because we will not be able to provide free parking everywhere. So people have to correlate and cooperate with us as and when we will be the authority to decide the parking facilities. We have to make the people understood about why the charges have been levied. Okay, and why you have to be careful about reserving your parking space from the phone or mobile phone. Okay, so the portability should be there, and smartness in the form of smartness in the technologies should also be incorporated. Okay, so we will start with the basic definitions. So basic definition, the very first, that is the parking accumulation. It indicates the total numbers of vehicles that are parked in given area during the specified period of time. Okay, what it indicates, the parking accumulation means, to accumulate means to gather. जो कुछ भी इकट्ठा हुआ है, accumulate हुआ है,
उसके बारे में ये डेफिनेशन है, इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर्स ऑफ व्हीकल्स that are parked in given area. So if your college buildings, particularly if your college building is the parking area, then we have to be careful about the parking area and the total numbers of vehicles accumulated. Okay, for the specific time period, say for example your college hours, right, from 10:30 a.m. to 5:30 p.m. So the parking accumulation is represented by the curve or say graph, in which the x-axis shows the timing of the day and y-axis shows the parking demand. So here you can see the chart. You can see in the x-axis for the parking space 1, there is a timing here at 30-minute interval. The timing has been presented. Next, that is the other thing, that is the average accumulation is there. So this graph can be generated in the Excel, and from the collection of the data, you can generate this type of graph. So other graphs are here. You can see numbers of graphs you can prepare like this for different types of parking spaces. Okay. Another thing, if we want to particularly draw this type of graphs without any angular markings, you can go for with pen and paper, and you can also demonstrate the parking accumulation for different area with different colors. See here, you can see the blue color is for office, pink color is for restaurant, yellow is for the cinema, and so on. Okay, so here the duration has been changed from 30 minutes to hours of the day. So this type of variety is present in parking accumulation curve. Now next definition, that is parking volume. So volume, that means nothing but the number of vehicles parked in a particular area over a given period of time. So generally this time is vehicle per day. Okay, parking accumulation में क्या हुआ था कि भाई for specific, लेकिन द पार्किंग का जो ड्यूरेशन है दैट हैज बीन चेंज फ्रॉम द पर्टिकुलर sorry generalized term to the particular, that is vehicles per day. Now third, that is the parking load, the area under the parking accumulation curve for the specified duration or period, that is to be named as the parking load. So if I make a hatching here, you can see in the first graph I have hatch marked this area from 11:30 a.m. to 12:30 p.m. If I am selecting the duration of 1 hour, and 11:30 a.m. is the starting time and 12:30 p.m. is the ending time. So for the 1 hour, if I select this area and mark it as a H1, so this is nothing but the area which shows the parking load. Okay. So parking load is there. Next, parking duration. It is the length. Now, whenever there is a duration, you have to select the time interval. Okay. So it is the length of time a vehicle spends in a parking space. Parking space में जितना भी time vehicle stay हुआ होता है, that is known as the parking duration. It is simple thing. Now, what about the parking occupancy? It is just a similar term, but it is numbers of spaces occupied in a parking lot expressed as percent of total parking. Total parking का 20% space अगर occupy हुआ होता है, तो that is the parking occupancy. Okay. So again you can see parking accumulation में जो भी hatches है वो indicate करता है parking load को. Next definition, that is of parking index. It indicates the percentage of parking bays actually occupied by parked vehicles to the theoretical number of bays available. So theoretical numbers of bays जो available है, say for example there are 10 bays available, and practically the availability is of 8 numbers. Okay, but we have to stick with the theoretical number of bays, that is 10, and out of 10 only 4 bays have been occupied. Then if we want to make in a percentage, it will be nothing but the 40%, right? So the parking index, again it represents the percentage. And last but not the least, that is the parking turnover. It is very important term compared to all other terms, because most of the reports regarding the parking surveys generally include these terminologies,
and based on this parking turnover, we generally express the usages of the particular parking area. So what is the parking turnover? It is usually calculated as numbers of time a parking space used during the day. How many times the parking space have been used in a day, that we have to calculate. If the parking 10 parking spaces have been used by the 100 vehicles during 12 hours, then the parking turnover will be 100 divided by 10, that is 10 vehicles per space in a period of 12 hours. Okay, so these were the basic definitions, and the goal to learn the definition is to present the technical data as well as to understand the study reports. अगर आप कोई after B, if you have been appointed by any transportation company and on the very first day you have to design you have to visit the site for which the project report has been prepared about designing the parking facility. So you have to go through the report first, and the various definitions will be there. So you have to correlate whatsoever you have learned in your BE with the field. By means of going through the report, you have to be careful about these definitions, and by understanding these definitions, you will be able to understand the reports with enhanced knowledge. Okay, so this was the basic purpose behind the behind learning these definitions. Okay, now types of parking surveys. So this is the field based topic. So as and when we will have to decide the parking space, we have to collect somewhat data by means of survey. Okay, you are well familiar with the surveying. So whatsoever we are reaching to the field and collecting the reduced levels or different levels, and then we come to the office and prepare the topographical map. So that has been the part of the total survey work. So in the same way, types of parking survey correlates the collection of field data and computation in the office. Okay, so basic purpose is to formulate a comprehensive parking plan for an area. What type of area? It is our study area, for which we have to design the parking facility. बराबर, जिस एरिया में हम पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं वो हमारा स्टडी एरिया हो गया, and for that study area we have to collect the data. So by means of which method we will be able to collect the data? So there are four methods. First, that is parking space inventory. That means to invent, we have to invent the parking space. Okay. Second, parking usage survey by patrol. It is not PETROL, it is PATROL. बराबर, पेट्रोल कोई सुनेगा तो सीधा 100 प्लस का प्राइस आ जाएगा माइंड में, तो वो पेट्रोल नहीं है. ये पेट्रोलिंग बाय मीन्स हमें सर्वे करना है, वहां पे घूमना है. ओके, so parking usage survey. So whatsoever the facility have been designed by us, we have to check whether people are using those facilities or not. Okay, अगर आपने पार्किंग स्पेस डिजाइन किया है और आप एक मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद वहां पे जाते हैं और चेक करते हैं कि भाई मैंने जो डिजाइन किया है वो पार्किंग स्पेस यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो पार्किंग यूजेज सर्वे बाय पेट्रोल वो मेथड है बाय विच वी कैन चेक whether we can provide the parking facility to the ground, or we can check the usage of the parking facility, existing parking facility. Third, तीसरा मेथड जो है वो क्वेश्चनर टाइप पार्किंग यूजर सर्वे है, जिसमें हम यूजर्स को अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे. क्या क्वेश्चन होंगे और क्या इंफॉर्मेशन हमें डेटा कलेक्ट करना होगा, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल, डोंट वरी. And fourth method, that is the cordon count. We have to cordon the area. We have to first of all bound the area for which we want to check the parking facilities, and we have to investigate the study area by means of the cordon. Okay, so let us discuss one by one. First, that is the parking space inventory. So you, in this method, you have to collect the data about amount, type and location of space actually available for parking in the study area. Okay, so हमें क्या करना है parking space inventory में? Inventory, that means we have to invent something. So in parking space inventory, we have to collect data about the amount of parking space available, type of parking space available, and location of parking space available. Okay, in the study area. Study area माने क्या?
कि स्टडी एरिया वो एरिया है जो फैसिलिटी डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द डिमांड, रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट प्लान ऑफ द सिटी। डेवलपमेंट प्लान है यहाँ पे, डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर नहीं है, डेवलपमेंट प्लान ऑफ द सिटी है। तो आफ्टर 20 years if we want to develop our city in such a way that it should accommodate more and more facility to the habitants and citizens, at that time we have to go for providing support facilities. As a part of the facility, parking space should be there. Okay, now how we can select the study area? तो पहले मैंने 3 क्राइटेरिया कहा कि फर्स्ट लोगों की डिमांड आती है कि चलो भाई सिक्सर एरिया में हमें पार्किंग स्पेस चाहिए, तो वी हैव टू चेक वेदर द डिमांड इज ट्रूथफुल और नॉट। सेकंड रिक्वायरमेंट कि भाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो चेक करता है कि इफ वी वांट टू प्रोवाइड द पार्किंग फैसिलिटी इन सिक्सर, व्हाट विल बी द लोकेशन। तो कि भाई शांतिलाल शाह इंजीनियरिंग कॉलेज के बाजू का जो प्लॉट है वहां पे पार्किंग स्पेस जो है वो हमें इन्वेंट कर देना है। ओके, तो वैसे स्टडी एरिया सिलेक्ट हो सकता है। और तीसरा मेथड जो है बाय मींस ऑफ डेवलपमेंट प्लान ऑफ द सिटी। डेवलपमेंट प्लान में है कि भाई यहाँ पे हमें पार्किंग स्पेस बनाना है तो वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो विजुअली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये तीनों में से कोई हमारे पास कुछ भी नहीं है तो विजुअली वी कैन विजिट द साइट, वी कैन ट्रैवल ओवर द रोड ऑन द रोड एंड वी कैन चेक whether this area is feasible for providing the parking facility or not. So पहला एरिया कौन सा है? तो भाई CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो होता है, जो हार्ट ऑफ द सिटी होता है। ओके, एंड इट्स नियर बाय एरिया। जो हार्ट ऑफ द सिटी है वो कंटिन्यूसली डेवलप होता है। at somewhat after somewhat years it will be at the saturation point, but till it reaches the saturation point it will be in a continuous development mode। तो जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट मोड है तो उसमें आजू बाजू में हम कौन सा स्पेस एक्वायर कर सकते हैं बाय विच वी कैन प्रोवाइड द पार्किंग फैसिलिटी। सो मैंने यहाँ पे भावनगर का एग्जांपल लिया है। जो तालाब एंड मार्केट एरिया है, इट कैन बी ट्रीटेड एज द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ भावनगर सिटी। ओके, तो वहां का जो एरिया है वहां पे हम एज अ पार्ट ऑफ द CBD वी कैन प्रोवाइड द पार्किंग फैसिलिटी। दूसरा स्टडी एरिया कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं? तो यू कैन सिलेक्ट द एरिया सराउंडिंग बिजिएस्ट रोड एंड नियर बाय स्ट्रीट्स। तो बिजिएस्ट रोड जो है वहां पे जमीन का भाव बहुत ज्यादा होगा। ओके, तो वहां पे पार्किंग स्पेस रिक्वायरमेंट के लिए हम जो जमीन वहां पे परचेस कर रहे हैं तो वो अच्छा आइडिया नहीं होगा, अच्छा डिसीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पार्किंग स्पेस प्रोवाइड करके हमें उतना रेवेन्यू नहीं मिलेगा जितना हम उस जमीन पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस या फिर रेसिडेंशियल मिक्स रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एरिया सराउंडिंग बिजिएस्ट रोड एंड नियर बाय स्ट्रीट्स, जो यहाँ पे भावनगर में वाघावड़ी रोड है, माधव दर्शन है, RTO है, तो ये ऐसा एरिया हुआ बॉस कि जहाँ पे हम स्टडी एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तीसरा जो स्टडी एरिया हम सिलेक्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ पार्किंग स्पेस इन्वेंटरी, दैट इज द स्पेसिफिक लोकेशन वेयर द पार्किंग फैसिलिटी इज टू बी डिजाइन। जो कि CBD यहाँ पे तालाब एरिया है, वहां पे कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे ही हमें पार्किंग फैसिलिटी जो है वो डिजाइन करना है एज अ पार्ट ऑफ मल्टी लेवल पार्किंग और मल्टी स्टोरी पार्किंग डिजाइन करना है, ठीक है। तो बैंक्स है, कॉम्प्लेक्सेस है, ओल्ड गवर्नमेंट ऑफिसेस जहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज बहुत कम है, सिटी और बस और स्टेट बस सर्विसेज एरिया है, वो स्पेसिफिक लोकेशन हो गया जहाँ पे हमें पार्किंग फैसिलिटी जो है वो डिजाइन करना है। ओके, सो बाय मींस ऑफ दिस क्राइटेरिया यू कैन सिलेक्ट द स्टडी एरिया फॉर पार्किंग स्पेस इन्वेंटरी। ओके, तो आफ्टर डिलिमिनेटिंग द सर्वे एरिया, अब जबकि हमारा सर्वे एरिया फाइनल हो चुका है, शांतिलाल शाह इंजीनियरिंग कॉलेज के बाजू में जो एरिया है वो हमारा पार्किंग स्पेस इन्वेंटरी हो चुका है, तो हमें वो एरिया जो है वो डिलिमिनेट करना होगा। ओके, we have to divide that area in terms of roads, streets and sub streets। okay, so the division and their subdivision should be there, first thing। Second thing, what type of data we have to collect? We have to collect the following data। first, that is the street width, रोड का width और street का width कितना है ये चेक करना है। टोटल लेंथ ऑफ कर्व, कर्व माने कि फुटपाथ। ओके, तो फुटपाथ वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो उसका लेंथ कितना है वो हमें चेक करना है, रिकॉर्ड करना है।
तीसरा, नंबर ऑफ पार्किंग स्पेसेस प्रोवाइडेड इन द स्ट्रीट। अगर एग्जिस्टिंग पार्किंग फैसिलिटी वहां पे है तो वो भी हमें चेक करना है, वी हैव टू रिकॉर्ड इट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पार्किंग स्पेसेस हैव बीन प्रोवाइडेड और एग्जिस्टिंग। उसमें वो भी चेक करना है कि व्हाट टाइप ऑफ पार्किंग स्पेस इज अवेलेबल। ओके, पार्किंग यहाँ पे एग्जिस्टिंग है तो कौन से टाइप का पार्किंग है वो चेक करना है। लोकेशन ऑफ बस स्टॉप, बस बेस, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, फायर हाइड्रेंट एक्सेट्रा, जो भी डिटेल्स हमें ऑब्जर्वेशन हम करते हैं तब जितना भी डिटेल्स आता है वो हमें कलेक्ट करना है, एंड द सेम वी हैव टू प्रेजेंट ऑन दी मैप। ओके, नेक्स्ट, ट्रैफिक मेजर्स लाइक प्रोहिबिटेड टर्न्स। अगर वन वे है या फिर टर्निंग प्रोहिबिटेड आता है, ओनली फॉर द डेडिकेटेड बस लेन है तो वो भी हमें रिकॉर्ड करना है। प्राइवेट स्ट्रीट्स, अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे नज़दीक में प्राइवेट स्ट्रीट्स है, उसमें ओनली इंडस्ट्रियल कॉम्यूटर्स हैव टू ट्रैवल। ओके, तो वहाँ पे हम रेगुलर यूजर्स नहीं जा सकते, तो एट दैट टाइम दोज आर द प्राइवेट स्ट्रीट्स। अगेन समवॉट सोसाइटीज आर देयर, तो सोसाइटी का कोई एसोसिएशन होता है। ओके, तो सोसाइटी का स्ट्रीट जो है वो हम वो जनरलाइज पार्किंग के लिए नहीं यूज कर सकते, तो these are the private streets we have to record on the record while the field observation. Okay, and last thing, that is vacant or unused land suitable for new parking. तो कौन सा पैचेस ऑफ लैंड अवेलेबल है जहाँ पे हम पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, नई पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं वो, ठीक है। So here, after collecting the data, you can prepare this type of street map. Here you can see, if I start from this point, I have framed somewhat symbols. Okay, ये आपकी बुक में भी available रहेगा। तो this breaking line indicates the parking in market base। तो जो भी एरिया है यहाँ पे पार्किंग जो है वो मार्केट बे में यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज विद द स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, विद स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, जो 15 नंबर्स के बे में आता है, दैट इज पार्किंग विदाउट मार्केट बेस। ओके, तो मार्केट का एंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे कोई अदर एरिया है। तीसरा जो है जहाँ पे मैंने रखा है कि पार्किंग प्रोहिबिटेड है, तो यहाँ पे शायद ऐसा हम कह सकते हैं कि आइदर देयर विल बी द प्राइवेट एरिया or other area which is falling under the commercialized purpose or industrial purpose, which cannot be used for providing the parking facilities for the general public. Okay, here अगर आप 10 नंबर के सामने देखते हैं तो वहाँ पे कोई हैचेस ऐसा रखा है, इंक्लाइन ऐसा रेक्टेंगल रखा है, तो वो क्या है, तो वो आप इंक्लाइन में अगर देख सकते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, दिस इज द एंगल पार्किंग। ओके, तो एंगुलर पार्किंग यहाँ पे दिया गया है विच इज एग्जिस्टिंग, एंड दिस इज द मीटर्ड पार्किंग। मीटर्ड पार्किंग मतलब क्या कि यू हैव टू पे समवॉट अमाउंट ऑफ चार्ज व्हाइल पार्किंग योर व्हीकल फॉर समवॉट ड्यूरेशन। अगर आप कोई ड्यूरेशन में पार्किंग करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे ₹1 पर आवर, एंड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इज ऑल्सो देयर। ओके, so if this is the sketch of the system, of the study area, then you have to be very careful about marking all this observation on the map. Okay, तो ये आपका फाइनल ड्राइंग हो गया बाय मीन्स, अगर आप किसी को ये प्रेजेंट करते हैं तो उसे फील्ड ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो व्हाट डू वी हैव टू टेक केयर अबाउट, अगर हम पार्किंग स्पेस इन्वेंटरी में जाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, तो हमें ट्रैफिक फ्लो का ध्यान रखना है कि एडजॉइनिंग रोड्स में कौन सा ट्रैफिक है, कैसा ट्रैफिक है। अगर वन वे ट्रैफिक है तो वो भी मार्क करना है, टू वे ट्रैफिक है, अथवा तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई वन वे ट्रैफिक जो है वो फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन हो, तो वो भी हमें रिकॉर्ड करना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द मैक्सिमम पार्किंग स्पेस अवेलेबल इंक्लूडिंग फॉर फ्यूचर प्रोविजन। तो मैक्सिमम पार्किंग स्पेस कितना अवेलेबल रहता है, उसके बाद अगर एग्जिस्टिंग डिमांड इतनी है तो फ्यूचर में अगर हम इसको एक्सपांड करना चाहते हैं तो प्रोविजन रखना है या नहीं रखना है, तो हमें प्रोविजन रखना है। तीसरा जो है वो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग का है। तो ऑन स्ट्रीट पार्किंग और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग वो दो टाइप्स हैं पार्किंग के। तो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग में क्या रहता है कि ऑफ स्ट्रीट पार्किंग में हमें स्ट्रीट या उसके कर्ब जो है उसमें पार्क नहीं करना है, हमें कहीं दूर पार्क करना है, दैट इज कॉल्ड द ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। It facility should be recorded separately.
क्योंकि ऑफ स्ट्रीट पार्किंग का जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है, वो हमें पार्किंग का पैटर्न, उसके चार्जेस और एंट्रेंस एंड एग्जिट के हिसाब से सारा रिकॉर्डिंग करना है। ओके, सो दूसरा जो पार्किंग स्पेस इन्वेंटरी के बाद आता है पार्किंग यूसेज सर्वे बाय पेट्रोल। So what is the purpose to obtain the data on extent of usage of parking spaces for on street and off street parking types? दोनों टाइप के पार्किंग यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, ऑन स्ट्रीट एंड ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, एंड वी हैव टू चेक वेदर वी कैन कलेक्ट द डेटा ऑफ यूजेज ऑफ द पार्किंग स्पेस और नॉट। ओके, सो द डेटा कलेक्शन इज देयर। सो कौन सा डेटा हमें कलेक्ट करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द काउंट ऑफ द पार्क vehicle at regular interval through a period covering both morning and evening peak time। दोनों में हमें चेक करना है, इवनिंग एंड मॉर्निंग पीक टाइम में भी चेक करना है और रेगुलर आवर्स में भी चेक करना है और ऑफ पीक आवर्स में भी चेक करना है। दूसरा पार्किंग एक्यूमुलेशन। नाउ यू आर वेल फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजी पार्किंग एक्यूमुलेशन। ओके, एंड थर्ड दैट इज पार्किंग टर्नओवर, अगेन यू आर वेल फेमिलियर। तो पार्किंग एक्यूमुलेशन मतलब कि नंबर्स ऑफ व्हीकल्स जो पार्किंग स्पेस एक्वायर कर सकते हैं वो पार्किंग एक्यूमुलेशन हुआ। पार्किंग टर्नओवर मतलब जो भी स्पेस अवेलेबल है वो कितनी बार नंबर्स ऑफ व्हीकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई हुए हैं, यूज हुए हैं, वो पार्किंग टर्नओवर हुआ। तो ये हमें डेटा इस मेथड में कलेक्ट करना है। तो कौन से स्टेप्स होंगे इसमें? तो प्रिपेयर द स्ट्रीट मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर द स्ट्रीट मैप। जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में कहा था वैसा स्ट्रीट मैप आपको बनाना है। सेकंड, सिलेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ पेट्रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ इफेक्टिवली यू कैन विजिट द साइट, हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर visiting the site, that will be the surety and reliability of the data। अगर मैं शांतिलाल साइंस के बाजू में जो मैंने पार्किंग स्पेस जो पहले प्रोवाइड किया है उसका यूज मुझे देखना है, तो मैं एवरी 6 आवर्स अगर जाता हूँ वहां पे, तो मुझे पूरे दिन के हिसाब से ओनली 4 डेटा मिलेंगे। ठीक है, 4 नंबर्स ऑफ रोज विल बी देयर। अगर मैं एवरी 3 आवर्स जाता हूँ तो मुझे 8 डेटा मिलेंगे। अगर मैं पर आवर जाता हूँ वहां पे, ठीक है, तो मुझे 24 डेटा मिलेंगे। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो है वो पेट्रोलिंग की बहुत अच्छी रहती है, तो डेटा भी उतने अच्छे रहेंगे, रिलायबल रहेंगे। नेक्स्ट, सिलेक्ट टाइमिंग ऑफ सर्वे। कितने टाइमिंग में आपको सर्वे करना है, ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द नाइट टाइम भी आपको सर्वे करना है या नहीं? So that will be strictly based on the type of parking facilities developed or provided, and record the observation. So at the site you have to record this observation. So the street mapping system कैसा रहेगा? तो we have to check the street and how we have to develop a plan कि भाई वी हैव टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी कि कैसे हम स्ट्रीट में वहाँ पे ट्रैवल करेंगे, कौन सा हमारा पैटर्न रहेगा। वी हैव टू वेदर वी हैव टू ट्रैवल इन क्लॉकवाइज फैशन और एंटी क्लॉकवाइज फैशन, और वी हैव टू ब्रेक द फैशन एट समवॉट एंड और व्हाट। सो हियर आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे ए पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ तो ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट ऐसे गया, तो ये एरो का डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है। So this is the direction of travel. Now, if I travel from A point to C point, I can see the perpendicular arrow marks in two-way direction. दोनों दिशाओं में यहाँ पे एरो का डायरेक्शन रखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हमें कौन से साइड में चेक करना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जितने भी एरोज यहाँ पे रखे हैं, तो मेजोरिटी ऑफ एरोज वो हैं जो 2 साइड्स है। ओनली ये जो ए टू जे में जो जाता है वो ओनली 1 साइड डायरेक्शन है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ थिंग वी हैव टू टेक केयर। अगर हम वहां पे फर्स्ट टाइम में विजिट करके आते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा स्ट्रीट में ट्रैवल का फैशन रहेगा और यहाँ पे जितना ऑब्जर्वेशन करना है वो ऐसे ऑब्जर्व करना है, तो एरो का डायरेक्शन हम वहां पे राइट कर ड्रॉ कर देते हैं। बाद में अगर कोई दूसरी टीम जो वहां पे डेटा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं उसको हम ये मैप देंगे, तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यस दिस इज द वे बाय विच वी हैव टू कलेक्ट द डेटा, दिस इज द सिस्टम बाय विच वी हैव टू ट्रैवल। ओके, ठीक है, तो ये ऐसा सिस्टम रहेगा। यू हैव टू आल्सो चेक एंड इंडिकेट द स्ट्रीट नंबर्स, देयर नेम, अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक वेदर एनी बस स्टॉप इज प्रेजेंट और नॉट एंड सो ऑन। ओके, सो वो स्ट्रीट मैपिंग सिस्टम हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेट्रोल में कैसा रहेगा? तो अगर आपका ऑन स्ट्रीट पार्किंग फैसिलिटी है
एवरी 0.5 आवर मतलब कि 30 मिनट में आपके 30 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। एक जो पूरा जो जर्नी है वो एवरी 30 मिनट आपको विजिट करना है। दूसरा जो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग में है, अगर आपका सिस्टम जो है वहाँ पे ऑफ स्ट्रीट पार्किंग सिस्टम है, तो एवरी आवर आई हैव टू ट्रैवल, सो द फ्रीक्वेंसी विल बी पर आवर। ओके, तो एवरी आवर मुझे ट्रैवल करके देखना है कि भाई पेट्रोलिंग करके देखना है, ठीक है, और डेटा कलेक्ट करना है। Timing of survey. So for 10 to 12 hours, we have to carry out the survey work for a day in a week. And if we want to get more data about the particular place, like for the office hour and for the holidays, then we also have to go for somewhat Sundays and other day than the Sunday. Okay. तो दो टाइप का डेटा हमें कलेक्ट करना होगा। ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बाय मीन्स ऑफ वॉकिंग और बाय मूविंग कार मेथड। ओके, तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है, अगर आप 30 मिनट्स में वहां पे पहुंच सकते हो जहां पे आप 30 मिनट्स पहले पहुंच गए थे, तो आपको बाय मीन्स ऑफ वॉक यू कैन रीच देयर, देन इट इज ओके। अगर आप वहां पे नहीं पहुंच सकते तो यू हैव टू यूज दी कार। ओके, थर्ड मेथड, क्वेश्चनर टाइप पार्किंग यूजेज सर्वे। तो इसमें पर्पस क्या है ये मेथड का? यू हैव टू आस्क द यूजर्स, जो पार्किंग स्पेस वहां पे डिजाइन की है और वहां पे जो यूजर्स ड्राइवर्स जो है वो यूज कर रहे हैं स्पेस, you have to ask those drivers and users that how the facilities are there, whether it is satisfactory or not, whether they need somewhat improvement or not। तो ये पर्पस हमारा है कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जो है या फिर न्यू डिजाइन हमें एक्सटेंशन करना है या फिर नया डिजाइन रखना है, तो वो यूजर्स को हमें पूछना पड़ेगा कि भाई कैसे ये डिजाइन करें हम, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन में क्या रहेगा? तो हमें ड्राइवर को पूछना है कि ओरिजिन ऑफ ट्रिप एंड डेस्टिनेशन ऑफ ट्रिप। तो कहाँ से आपने ट्रिप ओरिजिन की, कहाँ से आप एंड अप कर रहे हैं। ओके, ट्रिप दैट इज दी वन वे डायरेक्शन और मूवमेंट। ट्रिप का पर्पस क्या है? टाइम ऑफ अराइवल एट पार्किंग स्पेस, टाइम ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पार्किंग स्पेस, मतलब कि पूरा ड्यूरेशन आ गया। ओके, टाइप ऑफ व्हीकल, मतलब कि 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, नॉन मोटराइज व्हीकल है, क्या है। टाइप ऑफ पार्किंग स्पेस विच हैज बीन यूज्ड, जो भी पार्किंग स्पेस यूज हुआ है, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पार्किंग यूज हुआ है, फर्स्ट फ्लोर हुआ है, सेकंड फ्लोर, या फिर पार्किंग स्पेस यूज नहीं हुआ है और बाजू का बगल का कोई पार्किंग स्पेस यूज हुआ है। नेक्स्ट, टाइम स्पेंड टू सर्च पार्किंग स्पेस आफ्टर एंटरिंग इन द पार्किंग एरिया। अगर गंगा जड़िया तालाब में पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग है, तो अगर गंगा जड़िया तालाब एरिया में मैं अपनी कार लेके जा रहा हूँ और मुझे सर्च करना है कि भाई कहाँ पे पार्किंग स्पेस है, तो मुझे ये ड्राइवर को पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, तो आपको ये ढूंढने में कितना टाइम लगा? तो वो कहेगा कि भाई 15 मिनट्स। तो वो आपको चेक करना है फॉर द न्यू ड्राइवर्स। ओके, नए ड्राइवर जो है उसके लिए आपको ये चेक करना है। एंड ऑल्सो यू हैव टू कलेक्ट द डेटा अबाउट वेदर देयर इज अ लीगलाइज्ड पार्किंग और इलीगल पार्किंग। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको क्वेश्चंस पूछने हैं कि भाई कितने साल से या कितने मंथ से या कितने वीक से या कितने दिनों से आप ये फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, आपको ये फैसिलिटी कैसी लगी है, वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्या फेस हो रहे हैं, और दूसरा और फाइनली आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन आपके तरीके से क्या हो सकता है। ओके, so by means of improving the present area, what should be the the suggestions can be gathered from the users। एंड फोर्थ जो है वो मेथड हुआ कॉर्डन काउंट का। उसका पर्पस क्या है? टू इन्वेस्टिगेट एंड काउंट द पार्किंग रिक्वायरमेंट एंड एग्जिस्टिंग यूजेज ऑफ पार्किंग फैसिलिटी। डेटा कौन सा कलेक्ट करना है? तो सेम पहला मेथड जैसा ही कि हमें कोई एरिया जो है वो मैप पे हमने मार्क किया था। इन दिस you have to mark the area on the map as well as on the field. You have to cordon the area. You don't have to make the people escape from that particular area during your survey hours. If somebody wants to escape the survey area or cordon area, he or she has to give somewhat answers to your questions. You have to record the license plates, you have to calculate the parking accumulation, occupancy and parking load। मेथोडोलॉजी क्या रहेगा? आपको एक टीम इंपॉर्टेंट पॉइंट वार्डन एरिया जो भी किया है
तो आपको टीम्स जो है वो डिप्लॉय करनी है, वो चेक करेंगे कि कौन सा व्हीकल एंटर हुआ, लाइसेंस प्लेट रिकॉर्ड करेंगे, टाइम रिकॉर्ड करेंगे, टाइप ऑफ व्हीकल रिकॉर्ड करेंगे, और कौन सा व्हीकल बाहर जा रहा है। तो सेम टाइप ऑफ डेटा यू हैव टू कलेक्ट एट द टाइम ऑफ एग्जिट विच यू कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ एंट्री। ओके, सो टाइम इन एंड आउट रहेगा। तो ऐसा हमें फॉर्म ऐसा टेबल हमको फाइनली मिलेगा जिसमें पार्किंग इन एंड आउट जो है वो टाइम यहाँ पे लिखा है, एवरी 5 मिनट्स में 3 व्हीकल इन हुए, 2 व्हीकल आउट हुए। एक्यूमुलेशन कितना हुआ, तो 26 एक्यूमुलेशन हुआ। ऑक्यूपेंसी कितनी हुई, 65 हुई। पार्किंग लोड कितना हुआ, तो 130 हुआ। तो ऐसा आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ कंप्लीटिंग दोस 4 मेथड्स। ओके, तो ये हुआ पार्किंग स्पेस का पूरा स्टडी। ओके, कैसे हम पार्किंग स्पेस जो है वो कर सकते हैं। फाइनली मेथड्स जो है वो ऑन स्ट्रीट एंड ऑफ स्ट्रीट पार्किंग हम डिसाइड करेंगे। तो ऑन स्ट्रीट पार्किंग में कितने टाइप्स आते हैं, तो इसमें 5 टाइप्स आते हैं। पैरेलल पार्किंग 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ओके, तो इसमें हम बेसिकली 2 डिविजन्स रखेंगे। फर्स्ट दैट इज पार्किंग पैरेलल पार्किंग एंड सेकंड दैट इज द एंगल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग में ऐसा आता है, ठीक है, जो कोई रोड होता है, रोड के साइड में फुटपाथ और रोड के बीच में हम एक स्ट्रीट प्रोवाइड कर देते हैं फॉर द पार्किंग पर्पस, एंड दिस इज कॉल्ड द ऑन स्ट्रीट और कर्ब पार्किंग। ओके, तो इसमें कर्ब पार्किंग में हम व्हीकल जो है वो रोड के पैरेलल में पार्क करते थे, ठीक है, एंड द पार्किंग स्पेस कैन बी यूज्ड बाय द नियर बाय वर्किंग एरिया एंड द शॉप ओनर्स और ऑफिस ओनर्स। This can be either unrestricted parking or restricted parking. रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग में क्या होता है, पुलिस फोर्स जो है वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, और मीटर पार्किंग भी होता है जहाँ पे चार्ज लेते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग हुआ। अनरिस्ट्रिक्टेड और फ्री पार्किंग में कोई चार्ज नहीं रहता है, पुलिस भी नहीं रहता है। So our prime concern is to accommodate as more vehicles in available space, that is the per unit length. Okay. तो पैरेलल पार्किंग के फीचर्स क्या हैं, तो उसमें लेस रोड विड्थ रिक्वायर्ड रहेगा, नंबर्स ऑफ व्हीकल्स पार्क पर यूनिट लेंथ जो है वो लेस रहेगा, कम नंबर्स ऑफ व्हीकल्स, लेस नंबर ऑफ व्हीकल पार्क होंगे कंपेयर टू अदर एंगुलर पार्किंग। इट इज प्रिफर्ड व्हेन दी विड्थ ऑफ कर्ब पार्किंग स्पेस एंड डेप्थ ऑफ स्ट्रीट्स आर लिमिटेड। जहाँ पे नैरो स्ट्रीट्स है, जहाँ पे हम एंगुलर पार्किंग अथवा एंगल पार्किंग जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, उस नैरो स्ट्रीट्स में हम पैरेलल पार्किंग प्रोवाइड कर सकते हैं। पार्किंग एंड अदर पार्किंग ऑपरेशन जो है वो डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है, और स्पेसिंग जो है उसमें फेसिंग डायरेक्शन भी रहेगा। 2 कार्स को हम पैरेलल पे पार्क कर सकते हैं, लेकिन इट विल रिक्वायर मोर नंबर्स ऑफ रोडवे विड्थ। ओके, सो हियर यू कैन सी द पैरेलल पार्किंग सिस्टम। In parallel parking system you can see that the difficulties of car parking can be there. ओके, तो एंगल पार्किंग में क्या होता है, तो एंगल में हम ये 4 एंगल में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, 30, 45, 60 और 90। तो 30 एंगल में स्पेस जो है वो कम यूज होगा कंपेयर टू पैरेलल पार्किंग। उसमें 45 में वो ऑप्टिमम रहेगा, इट इज बेस्ट सिस्टम। 60 डिग्री में बहुत ज्यादा रहेगा, और 90 डिग्री में इट इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री टू द कम्युनिकेशन और डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल। ओके, तो इसमें कन्वीनियंट जो है वो 45 डिग्री रहेगा, इट इज कॉजिंग लेस ऑब्स्ट्रक्शन एंड कॉजिंग लेस डिले। ओके, तो ये जो है ये स्केचेस हो गए हैं। 2 वे ट्रैफिक, 1 वे ट्रैफिक, वो भी जो आप मार्क करना चाहते हैं तो वो आप पैरेलल पार्किंग में यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। सेम वे 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री में आप जो भी है वो अरेंज में ऐसा कर सकते हैं कि 1 वे रखना है, 2 वे रखना है। So ये in a nutshell we can observe these things for parallel parking and angle parking। जो मैंने कहा है वो मैंने एक ऐसे सिंपल टेबल में एक्यूमुलेट कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम पैरेलल पार्किंग की बात करें तो इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा भी रहता है कि अगर ये पिक्चर हम देखें तो वी कैन सी हियर द पैरेलल पार्किंग फैसिलिटीज देयर, तो कितना इफेक्टिव रोड विड्थ हमारा कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पूरा जो है वो पार्क करके रखे हैं, और प्रॉब्लम ये भी होता है कि यहाँ पे पार्क करने के कारण देयर आर चांसेस ऑफ डिले, देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स टू। ओके,
So how effects of parking along roadside can delay these things? So it reduces effective width of roads, it reduces roadway capacity and damage to vehicles as and when the accidents are there. तो अगर पैरेलल पार्किंग में अथवा तो ऑन स्ट्रीट पार्किंग में रखा जाए तो जो एरर आती है वो एरर का मल्टीप्लिकेशन होता है कि भाई उसने यहाँ पे गाड़ी रखी थी, मैंने गाड़ी पहले नहीं रखी थी, उसने गाड़ी रखी थी इसलिए मैंने रखी, तो वो पूरा सीरीज हो जाता है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ सीरीज यू कैन सी. ओके, सो अगर हम ऐसा चाहे कि भाई पैरेलल पार्किंग हमें कहाँ पे रखना चाहिए तो वो हमने ऑलरेडी देखा. लेकिन अगर पार्किंग प्रोहिबिट करना है तो हम पैरेलल पार्किंग जो है वो इंटरसेक्शन के आजू बाजू नहीं रख सकते, एकदम नैरो स्ट्रीट है तो उसके आजू बाजू नहीं रख सकते, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आता है तो उसके अगल बगल में नहीं रख सकते, ब्रिज टनल ऐसे जो भी कोई रोड के अलावा के जो स्ट्रक्चर्स है वहां पे नहीं रख सकते, इन फ्रंट ऑफ ड्राइवेज नहीं रख सकते, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्रंट में नहीं रख सकते, और बिजी रोड्स और इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिस और जो पब्लिक डीलिंग करते हैं वहां पे नहीं रख सकते. और वहां जहां पे इरेग्युलर स्ट्रीट पैटर्न्स है જેને આપણે પોળ કહીએ છીએ, બરાબર, પોળ છે, શેરી છે, અમદાવાદ, ખંભાત, નડિયાદ એ જગ્યાએ પોળ કલ્ચર છે, તો પોળ કલ્ચરની અંદર પાર્કિંગ પ્રોવાઈડ કરી શકાય નહીં, બરાબર. સો ધીઝ આર ધ રિસ્ટ્રિક્શન્સ ફોર ઓન સ્ટ્રીટ પાર્કિંગ. નાઉ what about its solution? The solution is presented in the form of off street parking. तो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग कहाँ पे रहेगा कि जहाँ पे ऑन स्ट्रीट या फिर फुटपाथ के नियर जो कोई फैसिलिटी नहीं है, उससे दूर कोई फैसिलिटी है, तो वो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग जो है वहां पे रहेगा. उसका पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट कंजेशन ऑफ पब्लिक राइट ऑफ वे एंड टू प्रमोट द सेफ्टी एंड जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल. जहाँ पे कंजेशन हमें रिड्यूस करना है तो वहां पे ऑफ स्ट्रीट पार्किंग रख सकते हैं. जहाँ पे जनरल वेलफेयर हमें पब्लिक की सुखाकारी बढ़ानी है, उनको प्रमोट करना है कि भाई आओ यहाँ पे पार्किंग करो, रोड पे पार्किंग मत करो, तो ये आप कर सकते हैं बाय मींस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ स्ट्रीट पार्किंग. यहाँ पे कोई अलग पार्किंग स्पेस डिसाइड करना होता है और वहां पे हमें पार्किंग फैसिलिटी डिसाइड प्रोवाइड करनी होती है. तो इसमें कौन सा ऑपरेशन रहता है? इसमें 5 ऑपरेशंस रहते हैं. फर्स्ट, व्हीकल विल एंटर, सो वो हो गया एंट्रेंस. उसके बाद है एक्सेप्टेंस, व्हीकल का एक्सेप्टेंस होगा कि चलो भाई गाड़ी हम पार्क करने के लिए जा रहे हैं, अंदर एंटर होके आगे जा रहे हैं. थर्ड जो है वो स्टोरेज, के व्हीकल हमने पार्क कर दिया. तो चौथा जो है वो है डिलीवरी, मतलब कि अब हम व्हीकल को कलेक्ट करने जा रहे हैं और व्हीकल हमने कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद हो गया एग्जिट. ओके, तो ये जो सिस्टम है वो पेड पार्किंग में भी अच्छा रहता है, फ्री पार्किंग में भी अच्छा रहता है. और जहां भी ऐसी फैसिलिटी है कि जहां पे हमें अटेंडेंट पार्किंग सिस्टम रखा है, कि अटेंडेंट पार्किंग सिस्टम मतलब क्या, कि हमें एंट्रेंस के पास हमारा व्हीकल और उसकी चाबी जो है वो कोई अटेंडेंट होता है उसको दे देनी होती है, वो अंदर जाके पार्क करेगा और हमें एक काउंटर फोलियो देगा या फिर रिसिप्ट देगा या फिर टोकन देगा. ओके, तो वो सिस्टम देगा हमें, वो एक टोकन देगा. तो टोकन हमें जब भी हम उसको टोकन देंगे उसके बाद में हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई हमारे व्हीकल लाओ, चलो जो पार्क किया गया है वो व्हीकल लाओ, तो वो व्हीकल लेके आएगा. तो फॉर सेल्फ पार्किंग ये फैसिलिटी अच्छी है और फॉर अटेंडेंट पार्किंग भी ये सिस्टम अच्छी है. तो उसके फायदे नुकसान क्या है और टाइप्स क्या है? तो प्रोज मतलब कि एडवांटेजेस है कि देयर इज नो एनी अनड्यू कंजेशन, कोई रोड पे आपको कंजेशन नहीं मिलेगा, डिले भी नहीं होगा और कोई ट्रैफिक जो मूव हो रहा है उसको रेजिस्टेंस भी नहीं रहेगा. डिसएडवांटेजेस क्या है? तो व्हीकल यूजर्स हैव टू वॉक फार डिस्टेंस फ्रॉम पार्किंग प्लेस टू डेस्टिनेशन. अगर पार्किंग प्लेस बहुत दूर है तो वहां पे हमने गाड़ी पार्क की है, वहां से लेके हमें जो भी हमारा डेस्टिनेशन प्लेस है वहां पे वॉक करके जाना होगा. दैट विल ऑल्सो एडेड इन जर्नी टाइम. ओके, टोटल जर्नी टाइम. It is not possible. Second, that is, it is not possible to provide at very close interval. ये जो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग सिस्टम है वो क्लोज इंटरवल पे हम नहीं कर सकते. ओके, दूसरा जो है और फाइनल जो है, कोई हमें अदर ऑप्शंस जो है वो हमको नहीं मिलेंगे. तो उसके टाइप्स क्या है? सरफेस कार पार्क है, मल्टी स्टोरी पार्क है, रूफ पार्क है, मैकेनिकल कार पार्क है और अंडरग्राउंड कार पार्क है. ओके,
तो सरफेस पार्क में क्या रहेगा, तो कि भाई प्राइम रिक्वायरमेंट होगी हमारी सफिशिएंट स्पेस। सरफेस पार्क मतलब ओपन खुले ग्राउंड में हम पार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, दोनों के लिए है, सेल्फ पार्किंग सिस्टम के लिए भी है और अटेंडेंट पार्किंग सिस्टम के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। रिजिडिटी क्या है, तो अनसुटेबल एट प्लेसेस वेयर लैंड क्राइसिस एग्जिस्ट, जहाँ पे जमीन की अछत है, स्कैर्सिटी है, वहां पे ये हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। वहां पे जहाँ पे एम्पल स्पेस नहीं है वहां पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। और जहाँ पे सेंट्रल एरिया है जो हमें ज्यादा रेवेन्यू कमा के देगा, वहां पे ये प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ऑटोमेटिक मैकेनिज्म फॉर पार्किंग विल नॉट बी पॉसिबल। तो ये रहा हमारा सरफेस पार्क सिस्टम। ओके, सरफेस कार पार्क का सिस्टम ये है। इसमें फॉर क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड दी सोलर सिस्टम और सोलर पैनल, तो ये भी हम रख सकते हैं। सेकंड जो है वो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग है। तो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग मतलब क्या कि हमें एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसे हमारा फ्लैट अपार्टमेंट होता है, तो ऐसे वहां पे हमें कार जो है वो पार्क करने के लिए अलग अलग फ्लोर्स मिलेंगे। तो हर एक फ्लोर पे अच्छा अगर कवरेज रहता है कार पार्किंग के लिए तो बहुत गुड रहेगा। अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर भी हम रखते हैं पार्किंग फैसिलिटी, बिलो भी रखते हैं, कंबाइंड सिस्टम भी रखते हैं, तो भी अच्छा रहेगा। इंटर फ्लोर ट्रैवल का फैसिलिटी भी रहता है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में अगर जाना है तो वो भी सिस्टम रहेगा। और इट इज कन्वीनियंट फॉर अटेंडेंट पार्किंग सिस्टम एज वेल एज फॉर सेल्फ पार्किंग सिस्टम। तो ये हमारा जो है वो मल्टी लेवल पार्किंग हो गया, और इसमें हम ऐसे कार पार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग फ्लोर्स पे भी कार है और रूफ पे भी कार है। ओके, तो ये इसके डिजाइन फीचर्स हैं। तो डिजाइन फीचर्स में उसका रैंप जो ग्रेडियंट होता है वो 1:10 रहेगा। फ्लोर हाइट जो है, हर एक फ्लोर की हाइट जो है वो 2.1 एटलीस्ट होनी चाहिए। पार्किंग स्टॉल का डायमेंशन जो हर एक सेक्शन होता है पार्किंग का, वो 2.5 मीटर हॉरिजॉन्टल और 5 मीटर वर्टिकल रहता है। इनसाइड रेडियस ऑफ कर्व, जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हम जो ये कर्वेचर प्रोवाइड करते हैं उसका रेडियस मिनिमम 7 मीटर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेंथ जो 3.75 मीटर रहेगा, और ग्रेडियंट हम 1:20 से स्टीपर नहीं रख सकते। ओके, और बाद में जो है वो लोडिंग स्टैंडर्ड्स रहेगा, ठीक है। तीसरा जो है वो है रूफ पार्क्स। तो रूफ पार्क में क्या, एज इट्स नेम सजेस्ट, यू हैव टू पार्क द कार्स और व्हीकल्स ऑन दी रूफ। उसमें मैकेनाइज्ड लिफ्ट भी रहता है और रैंप भी रहता है। तो हियर यू कैन सी the roof parking, it is very systematically done, but the only disadvantage is that you have to available the roof area, you have to design the roof as per the loading standard of these cars. Okay, तो डिजाइन स्टैंडर्ड थोड़ा हायर जाएगा, उसमें कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा। फोर्थ जो टाइप है वो मैकेनिकल कार पार्किंग है, जिसमें हम मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट यूज करके या फिर रोटरी एलिवेटर जो ऐसा होता है वो ऐसा यूज करके, लिफ्ट यूज करके हम कार जो है वो पार्क कर सकते हैं। वो दूसरे फैसिलिटी से कॉस्टली रहेगा, मेंटेनेंस भी उसमें ज़्यादा आएगा, और ब्रेकडाउन या एक्सीडेंट होने के चांसेस भी है। और अगर पावर फेलियर हो गया तो समझो मर गए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये वर्टिकल टावर जैसा पार्किंग है, तो ये इसमें मैकेनाइज्ड लिफ्ट भी है और पार्किंग फैसिलिटी भी दी गई है। अगर एक ही लिफ्ट रहेगी तो और एक ही पार्किंग सिस्टम रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो मल्टीपल लिफ्ट एंड एलिवेटर्स हम रख सकते हैं फॉर पार्किंग द डिफरेंट व्हीकल्स एट डिफरेंट फ्लोर्स। तो हमने जो ये 4 टाइप देखे हैं तो वो सरफेस के पार्किंग हुए, वो अबोव ग्राउंड लेवल के पार्किंग हुए। तो हमें ये भी पता है कि भाई बेसमेंट में भी पार्किंग हो सकते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ डिलेमा, कुछ आउटडोर रहता है कि भाई सरफेस के ऊपर का पार्किंग अच्छा है या बेसमेंट पार्किंग अच्छा है। तो हमारा 5th टाइप जो है वो रहेगा अंडरग्राउंड कार पार्किंग, तो जिसमें ओवरग्राउंड पार्किंग के जो भी रैंप्स या फिर एलिवेटर्स जो भी हमें रखने वो इसमें नहीं रखने हैं। हमें सिर्फ बेसमेंट प्रोवाइड करना है और बेसमेंट के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है फॉर द पार्किंग। तो इसमें रिटेनिंग वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा रहेगा, वो हमें डिजाइन करना होगा। एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वी हैव टू एक्सकेवेट द लैंड, वो हमारे लिए थोड़ा हेडेक बन सकता है। वेंटिलेशन एंड लाइटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करना है, नेचुरल लाइट सिस्टम वहाँ पे नहीं रहेगा। एंड ड्रेनेज एट द टाइम ऑफ रेन और ग्राउंड वाटर जो भी आता है तो उसके लिए ड्रेनेज फैसिलिटी भी डिजाइन करना होगा, ठीक है। तो ये आ गया अंडरग्राउंड पार्किंग सिस्टम। तो एट द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर
we are having many problems. So how can we solve it? Generally हमें जो भी problems आते हैं फील्ड में वो गवर्नमेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करते हैं? से फॉर एग्जांपल ये आया प्रॉब्लम कि भाई ये प्रॉब्लम कौन सा है, तो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि भाई इसमें दो पार्किंग बेस दिए गए हैं, लेकिन पब्लिक ने या शायद मिस्टर बीन ही होंगे, तो मिस्टर बीन ने ऐसे कार पार्किंग किए हैं कि ना तो ये बे हो सकती है अदर व्हीकल के द्वारा या दूसरी बे हो सकती है। तो हम सॉल्यूशन कौन से निकालते हैं? तो हम सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं कि चलो प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम में अगर सामान्य प्रॉब्लम भी है तो हमारा सॉल्यूशन में उतना दम नहीं रहता, ठीक है। तो दूसरा क्या है, चलो हमने सॉल्यूशन में दम डाल दिया, ठीक है, नाउ आवर सॉल्यूशन इज, तो ये सॉल्यूशन के हिसाब से पब्लिक जो है वो ओबे नहीं करेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें जो भी रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टिगेशन का, तो एग्जिस्टिंग पार्किंग हमें चेक करना है, एडिशनल पार्किंग स्पेस कितना हो सकता है ये भी चेक करना है, पार्किंग डिमांड जो है वो चेक करना है, और उसके बाद में हमें प्लानिंग और डिजाइन करना है, सीधा जाके प्लान है डिजाइन नहीं करना है, ठीक है। और फाइनली द चैलेंजेस फॉर फ्यूचर पार्किंग फैसिलिटीज, तो उसमें दो हेडलाइन मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटीज मिशन हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। तो स्मार्ट सिटीज में स्मार्ट पार्किंग होना चाहिए, तो ये एक रिक्वायरमेंट है जो आप फ्यूचर में फेस करेंगे। और दूसरा जो है, तो गुजरात में 70 प्लस मीटर के फ्लोर्स जो है, सॉरी 70 प्लस फ्लोर्स जो है उसके बिल्डिंग 5 सिटीज में परमिट कर दिए गए हैं। तो अगर ऐसा कोई केस स्टडी आता है तो उसमें पार्किंग कैसे डिजाइन करना है, तो वो जो है वो हमारा दोनों चैलेंजेस रहेगा। तो ये चैलेंजेस हम स्मार्टनेस के इंक्लूजन से कंप्लीट कर सकते हैं by transforming the parking facility into intelligent mobility hubs, and for that आप देख सकते हैं स्मार्ट पार्किंग अहमदाबाद में भी बहुत से अब बन चुके हैं, ओके। आप अगर ये मैंने स्क्रीनशॉट रखा है गूगल मैप का ही, अगर इफ यू राइट स्मार्ट पार्किंग अहमदाबाद तो ये आपको मिलेंगे। तो यस, द आंसर वी आर हैविंग एट प्रेजेंट इज कि हम पेड पार्किंग भी यूज कर सकते हैं बाय मींस ऑफ registering our parking space through mobile. So these are the link and videos for the extra information, and here I am giving an exercise to the students. As and when the presentation is available to you, you have to go through this exercise so that you can enhance your knowledge about the parking studies. So the references are there, and I am now opening the session for the questions. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you very much for giving such a nice presentation, and I'm definitely sure that the students of our college will be enlightened while attending this particular expert session on parking studies. So, as sir told, the session is open now for students. If you have any queries, you can. If you have any doubts, you can ask right now. वैसे जो लास्ट सेशन होता है वो बहुत ही बोरिंग रहता है शायद, तो मैंने ट्राई की है कि अच्छे से मैं आपको नॉलेज शेयर कर सकूं। Sir, it was excellent session, sir. I was keep observing. You have been very lucidly explained them all the integral parameters of the parking. So, in nutshell, generally, if you are just thinking of the parking, people are having the idea कि okay, जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे parking कर दो. It is not as good as that. पार्किंग में भी बहुत सारी चीजें आती है जो आपने बहुत दूसरी लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को समझाया है। तो students, please, if you have any doubt, please ask, or otherwise, if you want to give any feedback on this particular session, please come up. Otherwise, we have to conclude the session. Please, students, in Gujarati also, no problem. Hindi, Gujarati, if anybody. Yes. Chetan, Anish Chauhan is there. Sandeep is there. Unmute yourself and please share your views. I think, yeah. So, we are not finding any comments from the students, and I feel some of them is writing in the
ચેટબોક્સ ના ચેટબોક્સમાં નથી કઈ પણ I feel yes sir, we are very thankful for your excellent presentation that you have been spared a special time for the students of our college, and it was a very sincere delivery and very lucid way of your explaining the concept will definitely helpful to our students, and Okay, sir. hopefully we may arrange some other session also whereas our students may get benefited. Sure, sir. I So, will be on happy to behalf serve of- my institute. I have also studied Yeah. in SS Engineering College, so I always be happy to deliver such Yeah. sessions. And I will Yeah. circulate this presentation to you, sir. You may circulate to amongst the students, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you very much. On the behalf of Shantilas Engineering College, Civil Engineering Department, I am thanking Chintan Gajjar sir and Government Engineering College, head of the department, and principal sir for providing such a nice opportunity, whereas our students are getting benefit of expert knowledge of the very renowned faculties like you. So I feel now we are on the verge of concluding the session. Yes, sir. Okay, sir. So thank you very much. We are concluding this session over here. Thanks. Okay. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Thank you very much. Okay, sir.